Hi, hi Tapkesh. Hello, sister. How you do? I do fine, fine, बढ़िया बढ़िया types. And आज मेरे को अभिजीत ने बोला है कि उसका आज से नाम है तपकेश कुमार तपकावत. So guys, please अब आप भी उनको तपकेश ही बुलाया करिए. तो अभिजीत आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान लॉबिंग पावर वर्सेस इंडिया दिस थिंग. सो अभिजीत मैंने ये एक आर्टिकल पढ़ा बाय शांतनु मट्टू. And my kids were discussing it, and I was sitting there listening, and I was like quite impressed कि बच्चों को आजकल कितना पता. This Gen Z तो is like aware of everything. So then I did a research on it, and then I started reading about it and everything, and then I went on Google, and then I one or two articles I found on social media and all, I read them. So I want to talk about this now, and आप मुझे इस बात का बताओ that why does lobbying in Washington matter so much for India and Pakistan? So, look, nobody wants to talk about the kind of corruption that happens in America. Okay. Lobbying is totally legal out there. The problem is that you first have a completely useless embassy there. There were few exceptions. Ronen Sen was one very good ambassador we had. Uh, Maybe we've had one or two good ambassadors since then, but mostly the people who go there are looking for post retirement gigs out there. Or it's given as a plum posting like the current ambassador there. He's been around for about 10 more than 10 years. When he was in India, when he was joint secretary America, the Americans at the embassy hated him, the Americans in America hated him, and he reciprocated. He hated them. I don't know who started it, but anyway. Now you take somebody who's antagonistic to America, who goes there, does not engage at all with their political class. A is that you either employ lobbying firms, or B, you build personal relationships. Quatra does not build personal relationships. You do not have a proper lobbying firm. Then what happens? See, lobbying there is totally legal. You go, you have to represent interests, and invariably deals are made of some kind. Even though they say there are no deals, it is all above board. It is basically, in a sense, it is legalized corruption. Technically, what is legal is you going, meeting the person, saying you're a lobbyist, and putting your facts to that person, the legislator or whatever. Now, we have not done that because we have relied on our embassy, and the embassy there has failed us spectacularly. All these, जब टाइम अच्छा होता है, देखिए जो सब इंडियन थिंक टैंकर उधर होते हैं, वो आके कितना ये नखरा मारते हैं, ठुमका मारते हैं, झुमका मारते हैं, ये सब मारते हैं. जैसे ही टैरिफ लगा, एकदम चुप सब के सब. कोई टीवी पे नहीं आना चाहता है, कोई ऑपेड लिखना नहीं चाहता है, कोई मुंह नहीं खोलना चाहता है इस पे, है ना? So you are playing with a third rate bureaucracy, a bunch of third rate people who have been selected to you know not represent you. uh, you think they're representing you, they're only representing their own financial interests. And तो तुम्हारा एम्बेसी भी सो रहा था, तुम्हारे नॉन एम्बेसी भी सो रहे थे, तुमने हवा को ठीक से नहीं पढ़ा. पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, उसका केस ही बहुत घटिया है. समझ रहे हो ना? ये इस टाइप का है कि भाई अगर देख लो कौन सी घटिया गाड़ी होगी, एकदम घटिया गाड़ी जो फेल होते रहती है. आजकल तो थार की सर्विसिंग बहुत खराब है. बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, बट आई कांट से थार इज अ घटिया कार. आई वांट वन. It's not a bad, actually Mahindras are pretty good cars, huh? या uh, uh, सर्विसिंग इज लाइक आफ्टर सर्विस थिंग इज लाइक once you buy it then you're stuck. हाँ. देखो बांग्लादेश से एक गाड़ी आता था, डॉल्फिन नाम था उसका एक जमाने में, पता है, याद है तुमको? हाँ. सो इमेजिन यू हैव मारुति विच हैज अ वेरी गुड केस, एंड सो सेल्स कैंपेन ही नहीं करता है, पर डॉल्फिन जो घटिया गाड़ी है, एक नंबर का सेल्स कैंपेन करता है. लोग तो डॉल्फिन में ही, क्योंकि उनको पता ही नहीं है मारुति नाम का कोई गाड़ी है. समझ रहे हो ना? यही हुआ है हमको. द पाकिस्तानीज, बिकॉज उनका गाड़ी इतना घटिया है, वो हमेशा से सेल्स कैंपेन पर ही लगे रहे होते हैं. ये वो सहारा ग्रुप की तरह था ना.
सहारा तो हाँ, पिरामिड स्कीम था, कोलैप्स हो गया, पर उसका एडवर्टाइजिंग देखो कितना अच्छा था। हर चीज में हम देखो, हम परमवीर चक्र लोगों को अपने बोर्ड पे रखा है, सहारा परिवार, सहारा सल्यूट ऐसे करके देना, ये सब वो सब होता था ना, सब सब सहारा की बात करते थे। हर क्रिकेट टूर्नामेंट सहारा ऑल होता था। मार्केटिंग, अमिताभ बच्चन, ऑल मार्केटिंग। मुलायम सिंह यादव हमेशा सहारा पे होते थे, राइट। सहारा टीवी भी होता था एक। या तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। ये एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, दिस इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट क्या है कि ट्रंप को बुरा लगा है कि हमने उसको क्रेडिट नहीं दिया युद्ध रोकने के लिए। पर भाई काय का क्रेडिट दें तुमको? हमने तो पहले दिन ही जयशंकर ने आके उनसे बोल दिया था कि देखो, हमने तुम्हारे फौज को नहीं मारा है, हमने टेररिस्ट को मारा है। अगर तुम इसको और बढ़ाना नहीं चाहते हो, नो प्रॉब्लम, हम रोक देंगे। हमने फिर क्यों उन पे हमला किया? क्योंकि उन्होंने हम पे हमला किया। उसके बाद हमने हमला किया। ठीक, 7 तारीख को हमारा हमला एकदम सक्सेसफुल था। 8 तारीख को हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। 9 तारीख को बहुत बुरी तरह से उनको पीटा। तो 9 तारीख को वो आके रोके ये करने लगे कि भाई हमको बचाओ 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 बचाओ। अमेरिकन ने हमको कॉल किया, बोला कि भाई क्या चाहिए तुमको रोकने के लिए? हमने क्या बोला, भाई हम तो पहले दिन से ही रोकने के लिए तैयार थे। तुम हमको कॉल करो और बोलो तुम हमला नहीं करोगे, हम हमला बंद कर देंगे। तो उन्होंने कॉल किया, हमने बंद कर दिया, और क्या। भाई जब देख, तू और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट नेगोशिएशन होता है कि मैं तेरा घर हड़पने वाला हूं, और मैंने अभी तेरा सब कुछ, तुम्हारे दोनों बेटों को मैंने किडनैप करके इधर रखा है, और मैंने उनके सर पे बंदूक लगा के रखा है, ठीक है। तुमने मैंने प्रॉपर्टी बोला कि आज शाम तक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स तुम मेरे को भेजोगी, नहीं तो फिर, ठीक है। तुम क्या करती हो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली साइन करके भेज देती हो, और उसके साथ एक साइड ऑफ भेजा मसाला और मटन रारा भेज देती हो, ठीक है। तो मैं तुम्हारे बेटों को छोड़ देता हूं। अब जो वी फास्ट वाला या बोर्जो वाला या जो डंजो वाला था, जिसने वो कागजात तुम्हारे घर से ले आके मेरे घर पे दिया, मैं पब्लिक में क्या बोलूंगा? देखिए, हमारी पायल जी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने इतनी दयालु हैं, जो फैट लोगों को, फैट पीड़ित, शोषण को, शोषित लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया है, मोटे लोगों के सुरक्षा के लिए। और आप बोलेंगी देखिए ये कितना अच्छा आदमी है, अपना वादा निभाता है। कोई वो वी फास्ट या डंजो वाले को शुक्रिया अदा करता है क्या? भाई तूने वी फास्ट का काम किया है। कोई वी फास्ट को बोलता है ओ वाओ कितना अच्छा डिलीवरी सर्विस है वी फास्ट? नहीं। जब हम फोन पे बात करते हैं, वी थैंक ईच अदर। डू वी देन ट्वीट सेइंग ओ व्हाट हाउ वंडरफुल, मेरा एयरटेल का कनेक्शन कितना अच्छा है, होए हमारा बहुत बड़ा डील फैसिलिटेट कर दिया। 1% ऑफ ऑल बिजनेस डील्स कॉन्ट्रैक्टेड ओवर एयरटेल कनेक्शन विल गो टू एयरटेल। ऐसे कोई बोलता है? नहीं ना। एनीवे, उसको बुरा लग गया। फिर उसने क्या करने की कोशिश की कि वो आसिम मुनीर को, जैसे देखो बेशरम लोग भी होते हैं, पर जिनका थोड़ा शर्म हया कुछ होता है, को पीछे के दरवाजे से ऊपर ले आते हैं बेडरूम में। आसिम मुनीर को दोनों बार पीछे के दरवाजे से छुप चाप के, जैसे हीरा मंडी की तवाइफ को ले जाया जाता है घर के अंदर, ले आया गया। ना फोटो लिया गया, ना अंदर घुसने का भी फोटो नहीं लिया। हैंडशेक की तो भूल ही जाओ, घुसने तक का फोटो नहीं था उधर। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मोदी को कॉल किया जब वो कनाडा में समिट हो रहा था, और बोला देखिए थोड़ा इधर आ जाइए। मोदी ने बोला भाई नहीं, मेरे एंगेजमेंट्स हैं। मोदी ट्रंप को ये अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है, यूरोप के इमीडिएटली आ जाते हैं, जी हजूर, हाँ हजूर, आपका पिछवाड़ा पोछे हजूर, आपके चरण चाटे हजूर, क्या करें हजूर। वी आर नॉट लाइक दैट।
तो उसको थोड़ा और गुस्सा आ गया। अब उसने क्या किया कि जो पहले उसने 26% टैरिफ लगाया था, अब 25% प्लस 25% लगाया। वो अलग 25% क्यों? क्योंकि सपोजिटली हम ये कर रहे हैं, किस क्या रूस को समर्थन कर रहे हैं, वो दूसरी बात है। अब ऐसे सिचुएशन में जब किसी का गुस्सा होता है, इसी टाइम पे वो लॉबी जो होता है ना, लॉबी का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान ने क्या किया, सब डायरेक्ट लिंक वालों को पकड़ा, वो क्रिप्टो ब्रोज को पकड़ा, ठीक है। और क्रिप्टो ब्रोज ने इमीडिएटली जो ये एनएफटी ट्रम्प ने चलाए, नॉट एनएफटी, देयर सम क्रिप्टो कॉइन्स और समथिंग लाइक दैट, ट्रम्प टोकन्स और समथिंग लाइक दैट, उस पे द फैमिली हैज ऑलरेडी मेड अ $500 million वर्थ ऑफ प्रॉफिट। $500 million, 500 million लगभग, इट्स 400 एंड समथिंग मिलियन। अब हम ट्रम्प को 4-5 कॉन्ट्रैक्ट भी इधर दे दे ट्रम्प टावर के लिए, उतना तो आएगा नहीं भाई। तो इसमें ईगो का रोल है, भ्रष्टाचार का रोल है, लॉबिंग का रोल है, हर चीज का रोल है इसमें। और हम सो रहे थे, इसका और कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। उसके बावजूद हमारे उधर दूतावास के नालायकता के बावजूद और हमारे थिंक टैंकर्स के नालायकता के बावजूद ट्रम्प कुछ नहीं करना चाहता था जब तक उसका ईगो हर्ट नहीं हुआ। अब उसका ईगो हर्ट हो गया है, बट इट इज, यही मैं कितनी बार से वार्न किए आ रहा हूं कि जयशंकर इज नॉट अ गुड फॉरेन मिनिस्टर। आवर फॉरेन सर्विस इज अ वेरी बैड फॉरेन सर्विस, इट इज एन अंडरस्टाफ्ड फॉरेन सर्विस। पर मैं क्या जानूं भाई, इनका मेजर है गुड फॉरेन मिनिस्टर की का कि आप कितने रील बना सकते हो, वो लेजर आई लगा के या वो काला चश्मा लगा के 15 सेकंड के क्लिप। If your idea of a good foreign minister is 15-second clips where you can put laser eyes on him, best of luck to you. This is 33 to 45% a problem of your own foreign policy failures, the failure of your foreign service. Another 35% personal peak, maybe even up to 50% personal peak. And yet another 35% external circumstances. Now, how you adjust this, we don't really know. So now, But sorry. there is a good sign, which is Sergio Gore is being sent to India. It can either be good or it can be bad. He's being sent to bypass the IFS in Washington. उसका डायरेक्ट लाइन है टू ट्रंप। ट्रंप समाधान शायद करना चाहता है। दिस इज वन इंटरप्रिटेशन, आई विल गिव यू दिस इंटरप्रिटेशन, देन आई विल गिव द नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। ऐसा वो जाके प्रधानमंत्री से शायद मिले, प्रस्ताव रखेगा और फिर समझौता होगा। इसमें क्या है, ओ बाय द वे देयर इज द फोर्थ रीजन व्हिच आई फॉरगॉट, व्हिच इज वी हैड अग्रीड ऑन अ ट्रेड डील। ट्रेड डील को हमने इमीडिएटली साइन नहीं किया, चुपचाप से हम भी सो रहे थे 1 महीने के लिए और हमने साइन नहीं किया। नाउ सेर्जियो विल कम हियर, वो बोलेगा मैंने डील कर दिया है, ट्रंप को बुलाएगा, फिर मोदी जी ट्रंप को बुलाएंगे, सब समाधान हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरा इंटरप्रिटेशन भी है, और वो गोर को क्यों भेज रहा है, गोर को इसीलिए भेज रहा है क्योंकि डायरेक्ट लाइन है, ना ही तो वो यूएस फॉरेन सर्विस से जाएगा, ना ही तो वो इंडियन फॉरेन सर्विस का दखलंदाजी होगा, और उनका जो खुद अपनी रिटायरमेंट के बाद जो उनको फेलोशिप्स चाहिए उधर, उसका नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो ये गोर आ रहा है, शायद वो और भी दखलंदाजी करने आ रहा है कि वो जबरदस्ती पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बैठा के जबरदस्ती टॉक्स कराएगा। देखते हैं क्या होता है, हमारा इंतजार, हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक गोर ने आके अपने till he puts his cards on the table. Okay. Now, Abhijit, Pakistan, despite being in an economic crisis, is spending 3 times more than India on US lobbying. What does this reveal about their priorities? And is India underestimating the importance of lobbying while Pakistan is over investing in it? They're not over investing, they're investing very smartly. देखिए, लॉबिंग ऐसी चीज होता है,
देखो अब मैंने तुम्हारा घर हड़प लिया है, ठीक है, वो किडनैपिंग करके, तुम्हारे बच्चों का किडनैपिंग करके मैंने तुम्हारा घर हड़प लिया था पिछले 5 मिनट में। अब तुमने मेरे को खाना खिलाना बंद कर दिया है, मेरे को फिर से खाना चाहिए, ठीक है। अब मैं किससे अप्रोच करूंगा? मैं तुम्हारे को कॉल करूंगा तो तुम ब्लॉक करके रखी हो मेरे को, तुम मेरा फोन नहीं उठाओ। फिर मैं वरुण से बोलूंगा, वरुण भाई तू इसको कॉल करके बता। तू बोलेगी वरुण तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है, तू उस पे स्लैम कर देगी। फिर मैं बोलूंगा नंदिनी बहन तू इसको बुला। नंदिनी बारी धांडा बोलेगी कि मैं नहीं बोलने वाली हूं, वो फोन रख देगी। फिर मैं अतुल को बुलाऊंगा, अतुल बोलेगा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फिर अतुल क्या करेगा, वो तुमको बोलेगा बहन घर आ जा, मैं तेरे लिए मेरा वो जापानीज शोकुपान ब्रेड बनाऊंगा, और तुम उसके लालच में उसके घर जाओगी और फिर तुम मेरे से फोन पे बात करोगी और फिर मेरे को आमंत्रण दोगी फिर से घर आने के लिए। तुम्हारा नया घर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने तुम्हारा घर हड़प लिया है। Lobbying is like that. You never put all your eggs in one basket. You have multiple people. You never know who is useful at what point of time. इस बार जो लॉबिंग फर्म हमने हायर करके रखा है ये अच्छा लॉबिंग फर्म नहीं है, क्योंकि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ट्रंप के साथ। ट्रंप के साथ किसका डायरेक्ट कांटेक्ट है? मिलिंद देवरा। ही नोज ट्रंप सन, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सेस। You could have invested in that. Instead, you have chosen a company. Again, bad choices. तो पाकिस्तान ने बहुत इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करके रखा है। हम महा उल्लू हैं जिन्होंने ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया है, और जब इन्वेस्ट किया है वो भी गलत फर्म पे किया है। Abhijit, I was reading that all these lobbying firms linked to Trump, Pakistan ने वहाँ invest किए. So they're in direct. No, they are not in. It's not just lobbying firms. देखिए वो जैसे अपने एनआरपी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को मोबिलाइज करते हैं ना, वो भी हैरानी की बात है। आपके उधर राजदूत ने कुछ भी नहीं किया एनआरआईज के साथ। सो सी, उनका मल्टी बास्केट अप्रोच है। हमारा अप्रोच है भाई, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम काय का किसी का सेल्स कैंपेन करें। देखिए ये चला रहे हैं डॉल्फिन, इनको लगता है ये चला रहे हैं रोल्स रॉयस। वैसे डॉल्फिन नहीं है, मारुति सुजुकी है। पाकिस्तान चला रहा है 1950 का वेस्पा, और 1950 के वेस्पा के लिए उन्होंने नया ये सी एंटीक स्कूटर, classic Italian design. Now, when somebody markets to you like that, will you buy it or not? Acha, what specific gains has Pakistan secured from this lobbying blitz? Trade relief, trade deals, tariff relief, better access to Trump's inner circle, a narrative management, and is Pakistan succeeding in reframing itself from a terror state to a strategic partner in Washington? देखिए आखिर लोमड़ी तो कुत्ता नहीं बन सकता है। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, बहुत वफादार रहेगा, घर में टट्टी नहीं करेगा, बाहर ले जाओ तभी टट्टी करेगा, खाना ठीक टाइम पे खाएगा, घर को बर्बाद नहीं करके छोड़ेगा। लोमड़ी जितना भी प्यार दो, घर पर ही टट्टी करेगा, आपका पूरा फर्नीचर तबाह करके रखेगा। देखिए जब आपका प्रोडक्ट ही डॉल्फिन का गाड़ी है, आप उसपे जितना भी बॉडी मॉडिफिकेशन कर लो, कुछ भी कर लो, घटिया गाड़ी तो घटिया गाड़ी ही होगा ना। तो करने दीजिए, ये 1-2 साल चलेगा इनका, और फिर लुक पाकिस्तान इज अ रॉटन केस। आप जितना भी देखिए, आपने अगर फ्रिज में आपका आलू का पराठा सड़ गया है, आप जितना भी उसको नया से तवे पे सेकोगे, वो सड़ने का बू उसमें से नहीं जाएगा, है ना? यही है।
And how does this affect India's position on terrorism and Kashmir in US policy making circles? It doesn't. It doesn't. And do you think India is too dependent on their diaspora कि वो लोग कर लेंगे कुछ वो कुछ ना कुछ करेंगे, but I don't think so they're doing anything constructive. देखिए, नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टिव तब करेंगे जब आपका कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलेगा ना आपके एम्बेसी से या आपके फॉरेन मिनिस्ट्री से। देखिए, इजराइल का फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी डायस्पोरा का कैसे एंगेज करता है, पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी पूरा स्टेट अपने डायस्पोरा को कैसे एंगेज करता है। पोल्स, द पोलिश एम्बेसी, यू लुक हाउ दे एंगेज देयर डायस्पोरा इन अमेरिका। Armenian is going through a very bad presidency with a third rate president, terrible foreign policy, but in spite of that terrible foreign policy and bad position, उन्होंने कैसे अपने डायस्पोरा को एंगेज करके रखा है। फ्रांस ने भी आर्मीनिया जेनोसाइड रेजोल्यूशन पास करके रखा है, अमेरिका ने भी। आप जब खुद अपने डायस्पोरा को ठीक से एंगेज नहीं करते हो तो दूसरों पे काय का ये लगाते हो यार। But you think that this lobbying could trigger a new front in the Indian-Pakistan rivalry, not on the battlefield, not on the cricket pitch, but in Washington क्योंकि corridors of क्योंकि power. इसमें वी हैव अ हिस्ट्री कि अमेरिका सोचता है वो जितना पाकिस्तान को अपने पास रखेगा, पाकिस्तान उतना ही बेटर बिहेवियर करेगा, थोड़ा शराफत से पेश आएगा। पाकिस्तान जब भी अमेरिका के पास जाता है ना, वो अपने आप को बदतमीजी का लाइसेंस समझता है। तो जो मैं सिंदूर के बाद बोल रहा था कि अब फील्ड मार्शल का बाकी कोई चारा नहीं रहा, खुद अपने पोजीशन को बचाने के लिए उसको हिंदुस्तान में कोई बड़ा टेरर अटैक करवाना है। अब खुद के बचाव के लिए नहीं, दिखाने के लिए कि अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप इतना अच्छा है, जरूर करके रहेगा वो एक और टेरर अटैक। Oh, आपको याद होगा कि हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है, जब 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका पे, अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि तुम अपने बेसिस दोगे, तुम हमको ट्रांजिट दोगे, नहीं तो फिर वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज। उसके थोड़े ही महीने बाद जब अमेरिकन सपोर्ट और गारंटी, सिक्योरिटी गारंटीज मिल गए, उन्होंने क्या किया, आप समझोगे कि डर के मारे वो फिर से अपने टट्टू ओसामा बिन लादेन 9/11 टाइप का कुछ नहीं करेंगे। उसके कोई महीने बाद ही उन्होंने हमारे पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया यार। हाँ. दिस इज द पैटर्न। American support encourages more terrorism from Pakistan, not less. Okay. America thinks, Trump thinks he has disincentivized Pakistan. Actual में ट्रंप ने essentially उनको encourage किया है और attacks के लिए। I think, Abhijit, where does Pakistan get all this money? Like they're spending 3 times more than India, and economically तो बहुत weak है compared to India. हमारा तो इतना large country है सब है. Financially भी we are like we're much stronger. तो ये कहाँ से पैसा लाते हैं इतना सारा? From where does this money come from? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत गरीब देश है जिसमें बहुत अमीर लोग रहते हैं। जब उनके इंटरेस्ट का सवाल है, वो पैसा देने में कोई खिचकिचाहट नहीं करते हैं। जो पाकिस्तान का नेशनल डेट है, वो पाकिस्तान के एलिट्स का पर्सनल फॉर्चून है, जो सब दुबई में छिपा रहता है, बॉस्टन में छिपा रहता है, लंदन में छिपा रहता है। नेवर फॉरगेट दैट। आपको याद होगा जब हिंदुस्तान एक इतना गरीब देश था अंडर ब्रिटिश रूल, महाराजाओं के पास कोई कमी नहीं थी। सबसे बड़े हीरे, सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस, सबसे ज्यादा रूबीज, एमरल्ड, डायमंड, कार्टिए ने, फैन क्लीफ एंड आर्पेल्स ने तो अपना बिजनेस ही लंदन में और पेरिस में स्टोर था, पर 90% से ज्यादा उनका बिजनेस हिंदुस्तान में चलता था। जब लोग भुखमरी से मर रहे थे, तब यही महाराजा अपने लिए 50 कैरेट का
डायमंड का ये बना रहे थे, वो बना रहे थे. सो नेवर कंफ्यूज दैट, डोंट कंफ्यूज दैट. खुद अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो कुछ भी स्पेंड करेंगे. But Abhijit, if lobbying can tilt decisions, Hey, I'm not Abhijit, okay? okay, sorry, Tapkesh, if lobbying can tilt decisions in Pakistan's favor, doesn't India risk losing critical ground in US foreign policy debates? See, India is a mirror image of Pakistan that in a different way. जो पाकिस्तान आर्मी उनके लिए है, वो आईएफएस हमारे लिए है. अच्छा, okay. अगर हम लॉबिंग करेंगे तो सब बोलेंगे कि आईएफएस पे थू कार होगा. हमने आईएफएस काय का लिए पाल कर रखा है. इतने नालायक नपुंसक लोग काय का पाल के रखा है. उनको सैलरी काय का दे रहे हैं. उधर एम्बेसडर का घर देखा है डीसी में. तो ये क्या करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं लॉबिंग फर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इतने अच्छे हैं, हम इतने सोफिस्टिकेटेड हैं. देखिए हमारा कितना इंग्लिश बोलता है, सूट पहन के जाता है, डियोर के चश्मे पहन के जाता है, एकदम गुज्जू भाई की तरह, और एकदम फैला के रखता है. भुगतो. True. Even in selecting the lobbying firm, you've made a mistake. Okay, best of luck to you. So thanks so much, Abhijit. And I've come to this conclusion that in geopolitics, where geopolitics is concerned, whoever controls the narrative controls the outcome. And we're seeing it, it's showing this thing. Not necessarily. You can lose the narrative and still win the war. Mongols won, they had the biggest land empire on earth, but everybody remembers them as mass murderers. Yeah. You can get outcomes different. We won the war, we lost the narrative. Okay. India badly lost the narrative because there are still people, and the thing is, somewhere our internal politics is also responsible for it. No, it's not internal politics, it was a lack. But see, it was fast in Indian terms. 2 दिन के अंदर देखिए, फर्स्ट डे को वो लेडी ऑफिसर्स को लाना was genius. By day 3, it had overutilized the same trick. Yeah. हमने 11 तारीख को सब एडमिरल्स, एयर मार्शल्स को लाए, पर 10 तारीख को सीज फायर हो गया. 11 तारीख को कोई हिंदुस्तान को देख ही नहीं रहा था, तो उन 3 दिनों का जो नैरेटिव चला बस वही था. See, you can't have read out statements. You understand? It has to be टू फ्रो. ये तो फिर चलता नहीं है. That was the main issue. My friends met some Pakistanis in Dubai, and they were at the same party. Like, they didn't specially go and meet them, but they were at the same party. And those Pakistanis were boasting about how India को हरा दिया हमारी आर्मी ने और हमारे मुनीर ने और एयरफील्ड मार्शल जो भी उन्होंने हरा दिया. And they were boasting about the strength, their army strength and power and everything. And Indians too बैठे थे. ठीक है. Okay, fine. So, see, I'm not concerned about the narrative so much. It'll be good to have the narrative on our side, but no problem. I will settle for a real victory. The problem with a narrative like this is it only encourages Pakistan. 5 years down the line, they'll do something much worse. Okay, we can deal with that. My issue is that this has led to this particular tariff, this thing. That's not a good thing. बट हमारे साइड से भी देख लीजिए हम क्या कर सकते थे. कोई भी अगर हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री अगर एक अमेरिकन राष्ट्रपति से बोलता इसको निपटा दो, वो 2 हफ्ते ऑफिस में ना रहता भाई. He was asking us for something politically impossible without understanding the implications. Political reality. Pakistan can nominate him for a Nobel Prize. We can't. Well, Indians are so against Trump and they were wanting him to win. Is that we will not negotiate. Our whole thing is we will not negotiate with Pakistan. Remember that. We can't seem to be negotiating with Pakistan. We will not negotiate with Pakistan. Full stop. Thanks, Abhijit.